Good morning, students. Welcome to our new class. We are studying our second chapter, sexual reproduction in flowering plant. Among this chapter is divided into three parts. First, pre-fertilization. Second, fertilization, and third, post-fertilization. Till now, we studied about pre-fertilization, in which we studied about the structure of flower, male reproductive sex organ androecium, female reproductive organ gynoecium. Each part of androecium is called stamen and each part of gynoecium is called pistil. Then after we studied formation of gamete in by the process of microsporogenesis and megasporogenesis. Then we studied the structure of pollen grain or male gamete and embryo sac or female gamete. Then the second phase of pre-fertilization is gamete transfer. So gamete transfer is called pollination. Now our new topic today's of gamete transformation artificially, and by this we can do or we can produce a hybrid, and this process is called hybridization. And whenever the hybrid is produced by human being, then it is called artificial hybridization. First of all, look at the angiospermic speciality. This is embryo sac. Embryo sac is female gametophyte. In this structure there are 8 nucleus and 7 cells are present. Among them these three cells are called egg apparatus. In egg apparatus there is one egg cell and 2 synergid cell. So these egg cell and synergid cell consistently called egg apparatus, and the center binucleated cell is called polar cell or secondary cell. And polar cell, secondary cells nucleus is called polar nuclei or secondary nuclei, and these 3 cells are called antipodal cell. Now we studied about fertilization and triple fusion with the in this pollen pistil interaction. पोलन ट्यूब जो आती है वो पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड सेल से, तो यहाँ सिनर्जिड सेल में ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस. ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये पोलन ट्यूब का गाइडेंस करता है, डायरेक्शन करता है. तो पोलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियाई है. एक मेल न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज हो जाता है किससे, एग सेल के न्यूक्लियाई से, और ये क्या करता है, ये फ्यूज होते ही क्या बना लिया इसने, जाइगोट. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड fertilization. The fusion of gametes or the fusion of pronuclei are called fertilization, is called fertilization. And this is true fertilization and first fertilization, because with the help of egg cell and male nucleus they can produce embryo, because zygote further convert into the embryo, so it is called true fertilization. Second, male nuclei and 2 nuclei of polar cell fuses together and make endosperm. Endosperm is a nutrient material for the embryo. This is the ploidy of endosperm is triploid. In gymnospermic plant, embryo sac is converted into endosperm before the fertilization, and in angiospermic plant endosperm is made after fertilization, and with the help of double fertilization it converts into triploid endosperm, and triploid endosperm provide nutrient material to the zygote, or we can say developing embryo. Now artificial fertilization. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि ये जो
अपन ने बात की थी अभी तक पोलिनेशन, ठीक है। ये पोलिनेशन जिस भी पोलिनेटिंग एजेंट ने किया था, मान लीजिए अगर विंड ने किया था तो विंड पोलिनेशन, वाटर ने किया था तो वाटर पोलिनेशन, बैट ने किया था तो बैट पोलिनेशन, इंसेक्ट ने किया था तो इंसेक्ट पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन मींस, पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ गेमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पोलिनेशन अगर ह्यूमन बीइंग करेगा तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी देखिए मैंने 3 टॉपिक के नाम लिखे हैं, तो इनमें प्रत्येक पे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, इमेस्क्यूलेशन, बेगिंग और टैगिंग। तो ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, प्लांट पे लगा हुआ है, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अपन ने 2 टाइप के पोलिनेशन पढ़े थे, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऑटोगेमी एंड गाइटेनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, ये जो एंथर है, इस एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पोलिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वी डिटेच दीज स्टेमन्स फ्रॉम फ्लावर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से स्टेमन को रिमूव करना क्या कहलाता है? इमेस्क्यूलेशन। क्लियर? व्हाट इज इमेस्क्यूलेशन? बाइसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें इमेस्क्यूलेशन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, तो उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां इमेस्क्यूलेशन क्या है? इन स्टेमन्स को सीजर की हेल्प से रिमूव करना इमेस्क्यूलेशन कहलाता है। और वी कैन से रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्रॉम ए फ्लावर इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। अब सेकेंड एक्टिविटी इज बेगिंग। तो बेगिंग के अंतर्गत अब हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे स्टेमन्स को रिमूव कर दिया, लेकिन अब जो स्टिग्मा बची है उस स्टिग्मा के ऊपर पोलिनेशन हो सकता है, मींस नेचुरल पोलिनेशन। कोई इंसेक्ट आकर बैठ सकता है, वो दूसरा पोलन ग्रेन लेके आ सकता है इसके ऊपर, या विंड के द्वारा कोई पोलन ग्रेन आ सकता है। तो यहां क्या करेंगे, यहां इनको रिमूव करने के बाद में और इस फ्लावर के चारों तरफ एक पॉलीथीन बांध देंगे, ठीक है। दिस फ्लावर इज कवर्ड बाय ए पॉलीथीन टू प्रिवेंट नेचुरल pollination and this activity is called begging. अब whenever the stigma will mature, then human being with the help of a painting brush they can spray the pollen grain on this stigma before removing the polythene, ठीक है। अब ये जो इमेस्क्यूलेशन किया, बेगिंग किया या इसमें पोलिनेशन किया, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो एक टैग बना के और इस प्लांट के या इस फ्लावर के चारों तरफ बांध देते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? टैगिंग। द इंफॉर्मेशन अबाउट इमेस्क्यूलेशन, बेगिंग एंड पोलिनेशन इज राइट डाउन ऑन ए पेपर और a plastic and then we tag this paper on the plant. This is called tagging. तो ये है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में हम किसी भी प्लांट के ऊपर किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को डालकर क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन ने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, whenever 3 nucleus are fuses each other, then it is called triple fusion. So the fertilizations occur in angiospermic plants in 2 times, so it is called double fertilization and this is the unique specialty of angiospermic plant. Now अब इससे क्या होगा? इस फ्यूजन से क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैन फर्दर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और इस फ्यूजन से, इस फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट, एंड जाइगोट फर्दर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, एंड फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है उसको अपन क्या कह देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे केवल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, वी कैन से PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस develop into endosperm. Endosperm is a nutrient material for the developing embryo. So there are three types of endosperm in angiospermic plant. First nuclear, second cellular, and third halobial. In nuclear endosperm, PEN means प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किससे बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन से। तो ये न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली डिवाइड होता रहता है, मींस सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा था जूनियर में, याद होगा। सेल डिवीजन को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन सेलुलर डिवीजन। सो न्यूक्लियस डिवीजन इज कॉल्ड karyokinesis and cell cytoplasm division is called cytokinesis। तो यहां क्या होगा, जो न्यूक्लियर है या फ्री न्यूक्लियर है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विद द PEN मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो अब फ्रीली डिवाइड होता रहेगा, यानी इसमें केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइडेशन के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर। और इसमें इन तीनों ही एंडोस्पर्म में ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या, अभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये क्या है, ये प्रो एम्ब्रियो है तीनों में ही, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मली अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कोकोनट वाटर होता है, द कोकोनट वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ nuclear endosperm and the carinal surrounding of coconut is the example of cellular endosperm। and another example if we want to see, then maize, wheat, rice, sunflower are the example of nuclear endosperm। और आफ्टर मेच्योरेशन, जब ये मेच्योर हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, मींस जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस दीज न्यूक्लियस आर आल्सो मेक ए सेलुलर डिवीजन, यानी आफ्टर मेच्योरेशन क्या होगा, ये जो फ्री न्यूक्लियस है, ये फ्री न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेल डिवीजन भी करेंगे, यानी साइटोकाइनेसिस भी इसमें होगा, लेकिन इन द एंड, और वी कैन से आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सेकंड अपने पास सेलुलर, तो सेलुलर में क्या होगा कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ क्या चलता रहता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन भी चलता रहता है। और वी कैन से द न्यूक्लियस डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन occurs टुगेदर, मींस इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस टाइप से क्या बनती जाएगी, सेल्स भी बनती जाएगी। जब सेल साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस साथ साथ होता है टुगेदर, तो इससे जो डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो सेक का, ये एम्ब्रियो सेक क्या कहलाता है, सेलुलर। क्लियर, ये एम्ब्रियो से क्या हो गया, अपना सेलुलर हो गया। यानी न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता जाएगा, जिससे पूरा एम्ब्रियो सैक जो है, या यूं कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बोथ डिवाइडेड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, सो ईच न्यूक्लियस ऑब्टेन्ड ए सेल। तो इस टाइप से ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो जाएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सेल्यूलर। थर्ड जो है वो है हिलोबियल। तो हिलोबियल के अंदर क्या होगा,
अपन ने देखा एम्ब्रियो सैक में दो एंड्स होते हैं, एक तो माइक्रोपाइल एंड और दूसरा छलाजल एंड। तो एक एंड छलाजल एंड की तरफ तो क्या होगा, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और जो छलाजल एंड माइक्रोपाइल एंड के अंदर, या आप यूं समझ सकते हैं कि एक एंड में, यानी एक एंड हो गया ये छलाजल एंड, एक हो गया माइक्रोपाइल एंड, तो एक एंड में तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप सेल वॉल का फॉर्मेशन होता रहेगा इस टाइप से। यानी एंडोस्पर्म का जो हाफ पार्ट है, उस हाफ पार्ट में तो क्या होता रहेगा, न्यूक्लियस, और वी कैन से कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म ओकर टुगेदर। और हाफ पार्ट में क्या होगा, केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो हाफ पार्ट में तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से जो अपना पहला था न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियस क्या करता है, फ्रीली डिवाइड होता है। और सेलुलर में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप क्या बन रही है, सेल वॉल भी बन रही है। तो इसमें थर्ड वाले में हिलोबियल, जिसका एग्जांपल है एसोफोइडेलस, इसमें हाफ पार्ट में तो क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन साथ साथ में होगा, और जबकि हाफ पार्ट में केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक क्या है, यूनिक स्पेशलिटी है। इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो इसलिए होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये क्या करें, न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहें। उसके बाद में अपने बचता है एम्ब्रियो जेनेसिस, तो वो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।